سب سے پہلے تو میں جامعہ ام کلثوم لیلبنات کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور سے حضرت مولانا ہاشم صاحب کا اللہ رب العزت ان کے کام میں اور برکت دے، اللہ ان کی محنت کو اور مزید بڑھائے۔ دوسری بات، میں تمام امت کے اور خاص طور سے آپ جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے گارجن سب کو میں دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہمت کے اور بہت حوصلے کے لائق ہیں، بہت تعریف کے لائق ہیں جو اپنی بچیوں کو جامعہ ام کلثوم لیلبنات میں پڑھانے کے لیے بھیجے ہیں۔ بچیاں، سب سے پہلی بات تو آپ جہاں پہ بیٹھی ہیں ایک بہت بابرکت جگہ ہے، بہت متبرک جگہ ہے۔ آپ اس قوم کی امانت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، اور آپ پڑھ کر کے ایک قوم کو بیدار کرنے کے لیے جائیں گی۔ وہ یہ کہ آپ نسلوں کو بنانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام سے کہ آپ یہاں سے پڑھ کر کے پوری امت کو جگانے کا کام کریں گی۔ ہمارے پاس تو وقت بہت کم ہے، ہم لوگ تو صرف آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور ملنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ کو دیکھیں، آپ لوگوں سے دعائیں لیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بار بار بھی آئیں گے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ جو بچی قرآن پڑھ رہی تھی بہت شاندار قرآن کی تلاوت کی انہوں نے، جو نعت وغیرہ پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ بہت شاندار انداز میں نعت پڑھ رہی تھی، تو دل خوش ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو پیغام ہے میں دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، اور ہماری ٹیم، ہمارے ساتھی لوگ سبھی پہنچا رہے ہیں، اور ہم لوگ کا دل خود چاہا کہ ہم آپ لوگوں سے ملیں، آپ کے پاس آئیں، آپ لوگ کو دیکھیں۔ ماشاءاللہ دل تو بہت خوش ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے والدین خصوصی تعریف کے لائق ہیں، میں ان لوگوں کو بھی دعا دیتا ہوں اور آپ تمام کو بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو دین دنیا راج کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور علم میں آپ کے مزید ترقیات دیں، بہت آپ کے علم اونچے ہوں، اور آپ نسلوں کو کام کرنے والے بنیں، اور پوری امت کو بیدار کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو عافیت اور سلامت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بچیوں، اللہ رب العزت نے پورے کشن گنج کے تمام بچیوں کے مقابلے میں آپ لوگوں کا دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو زندہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کا انتخاب دنیا میں کر لیا ہے، اور آخرت میں وہ جنت میں جائیں گے، اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو جو لوگ ابھی مدرسے میں داخلہ لیے ہیں، اس مدرسے میں تشریف لائے ہیں، آپ لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ عالمہ فاضلہ بنیں گی؟ دیکھو، دو کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ صرف حافظ نہیں بننا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ ہم سونیا گاندھی کا نام سنا ہے نا؟ مایاوتی کا نہیں سنا ہے؟ ممتا بنرجی کا سنا ہے؟ بنگال میں جو مکھ منتری ہے نا، وہ جس طریقے سے مکھ منتری بنی ہے، تو ہم کو اسلام کا مکھ منتری بننا ہے، قرآن کا مکھ منتری بننا ہے۔ اچھا، صرف عالمہ اور فاضلہ ہی نہیں بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہمیں نرس بھی بننا ہے، ہمیں دنیا کے ان علوم کو بھی حاصل کرنا ہے جن علوم کو حاصل کرنے کے بعد ہماری بچیاں بگڑ جاتی ہیں، تو ہم کو وہاں جا کر کے ایک مثال قائم کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر بنو تو ایسی بنو، نرس بنو تو ایسی بنو۔ اور آخری بات، اسلام میں عورت کا مقام مرد سے کم نہیں ہے، اور عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح نسل کی تربیت کرے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت کرے، خواجہ معین الدین چشتی کی تربیت کرے، نظام الدین اولیاء کی تربیت کرے، ایسے افراد پیدا کرے۔ تو ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے بھی ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت قبول کرے۔
माशाअल्लाह मुझे आकर यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मौलाना हाशिम अख्तर साहब जिस तरह ये लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, वाक़ियतन आज से तकरीबन 10-15 साल पहले हमारे इलाके में इस तरह का मदरसा नहीं था, लड़कियों के लिए ख़ास करके। और जिस तरह चंद दिनों में इतने बच्चों को यहाँ लाकर जुटाना और इस तरह का निज़ाम को बनाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह बहुत जल्द मौलाना हाशिम साहब ये दरख्त आपका फूलेगा, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और ख़ासकर बच्चियों, मैं आपसे और इस कौम की बच्चियों से यही तमन्ना करता हूँ कि आप सब आने वाले नस्लों के लिए इंशाअल्लाह हिदायत का जरिया बनेंगे उनके लिए। जो हमारे मुआशरे में बुराइयां हैं, हमारे घरों में औरतों के अंदर जो बुराइयां हैं, इंशाअल्लाह आप सब यहां से निकल कर इंशाअल्लाह उस बुराइयों को आप खत्म करने वाली बनेंगी इंशाअल्लाह। और आपको यहाँ आने का मौका मिला है, बहुत सारी बच्चियां हैं जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रही है, और आपको अल्लाह ने मौका दिया यहाँ आने का, कुरान करीम की तिलावत करने का, पढ़ने का, हदीसों को सुनने का, पढ़ने का ये मौका मिला है आपको। इसको गंवाना नहीं है, वक्त को बर्बाद नहीं करना है। इस चार दीवारी के अंदर में रहकर अपने किताबों में, अपने कुरान करीम की तिलावत में, पढ़ने में, दूसरी किताबों को पढ़ने में अपने दिल के अंदर उसको जज्बा पैदा करना होगा, शौक पैदा करना होगा। करेंगे भाई इंशाअल्लाह बच्चियों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो बातें मुझे आपसे अर्ज करनी है। हजरत मौलाना हाशिम अख्तर कासमी साहब ने जो ये पौधा लगाया है जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, ये इंशाअल्लाह एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। और ये दरख्त उन्होंने कौम की, मिल्लत की बच्चियों के लिए लगाया है। इस दरख्त का फायदा और इस दरख्त का समरा जो हासिल होगा वो कौम मुस्लिम को, हमारी मिल्लत को हासिल होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि जिस तरह मुसलमान अपने लड़कों को, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराएं, जैसा कि करा भी रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता कराएं, अपनी लड़कियों को दीनदार बनाएं। हमारे घरों में जो बिगाड़ है मुआशरती तौर पर, हमारे घरों में आप लोग देखती होंगी कि शादी अगर किसी के यहाँ होती है तो कितने रस्म रिवाज हैं, और हर रस्म रिवाज वो इस्लाम के खिलाफ है। हल्दी हो, गीत गाना हो, इतने ज्यादा बाराती हो, जहेज हो, तिलक हो, और पता नहीं क्या क्या खुराफात करते हैं, जूता चुराई, मिठाई खिलाई, हाथ धुलाई, डांस, डीजे, नाच गाना, ये सब शादियों में होता है या नहीं होता है? ये सब इसलिए हो रहा है कि उन घरों में जो औरतें हैं, जो हमारी माँ चचियां हैं, वो दीनदार नहीं है, उन्हें दीनी तालीम हासिल नहीं की है उन लोगों ने। तो मैं दो बातें आप हजरात से अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपने जो मदरसे में दाखिला लिया है या आपके गार्जियन ने जो आपको मदरसे में भेजा है, तो यहां आप ये सोचकर पढ़ें कि हम यहां अपने ईमान को मजबूत करने आए हैं। क्या करने आए हैं? अपने ईमान को मजबूत करने आए हैं, दीनदार बनने के लिए आए हैं। और यहां से हम दीनदार बच्चियां बनकर निकलेंगी, हम यहां से दीनदार खातून बनकर निकलेंगी, हम यहां से अल्लाह वाली बनकर निकलेंगी। ठीक है, एक तो इरादा ये कर लीजिए आप। और दूसरा इरादा आपको यह करना है कि हमारे घरों में जो बुराइयां पाई जाती हैं, इस्लाम मुखालिफ जो रुसूमात पाई जाती हैं या नजरियात पाए जाते हैं, और हमारे घरों में जो बदअकीदगी फैली हुई है ना, किसी को कुछ हो जाता है तो कोई भले कोरे दिया, जादू कोरे दिया आप, हाँ, किसी को कुछ हो जाता है तो भले चादर चौवा मदारत जाए, हाँ,
तो ये सब क्या है? ये बदअकीदगी है, ये ईमान की कमी है। ठीक है, तो दूसरा इरादा आपको ये करना है कि हमारे घरों में जो बिगाड़ है, हमारे घरों में जो बेदीनी है, हमारे घरों में जो बदअकीदगी है, जो ईमान की खराबी है, उसको हम दूर करेंगे यहां से जाकर। ठीक है, इंशाअल्लाह ये इरादा करेंगे आप, इसलिए कि आज के वक्त में ईमान का तहफ्फुज बहुत ज्यादा जरूरी है और घरों के माहौल को दीनदार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर का माहौल उस वक्त दीनदार बनेगा, हमारी शादियां उस वक्त दीन के तरीके पर होंगी, हमारे घरों में तकरीबात उस वक्त दीन के तरीके पर होंगी, जब हमारे घर की खवातीन दीनदार होंगी, जब हमारी माएं बहनें दीनदार होंगी, जब हमारी चचियां और फूफियां दीनदार होंगी, तब जाकर घरों का माहौल दीनदार बनेगा। शादियों में खुराफात नहीं देखने के लिए मिलेंगी और तरह तरह की रसूमात नहीं देखने के लिए मिलेंगी, बदअकीदगी की बातें नहीं सुनने को मिलेंगी। और आप ही लोग कल होकर किसी घर की गार्जियन बनेंगी, किसी की मां बनेंगी, किसी की चची बनेंगी, किसी की फूफी बनेंगी, आप हजरात पर जिम्मेदारी आयद होंगी। तो आप हजरात अपने घर के माहौल को सुधारने का अज़्म लेकर यहां रहिए कि हम अपने घर में बेदीनी नहीं होने देंगे, हम अपने घर को दीनदार तरीके से ढालेंगे और हम अपने घर में पर्दे का माहौल तैयार करेंगे, है ना। अभी तो कोई भी आप लोग देखती होंगी, खाला की लड़की है, फूफी की लड़की है, चाची की लड़की है, आप लोग घर जाती होंगी ना, देखती होंगी, कोई कारो साथे बोठे चले गए, बाइक है ना, मोटरसाइकिल कारो, माथा ओढ़नी नीचे, है ना, कोई बुरकाई नहीं पहनती है, हिजाबी नहीं लगा रही है, कोई पर्दा वर्दा कुछ उन लोग के अंदर नहीं है। क्यों है ऐसा? इसलिए कि उन लोगों ने दीन को नहीं समझा है, दीन की तालीम हासिल नहीं की है, किसी मदरसे में उन लोगों को नहीं भेजा गया है, इसलिए ये बेदीनी है, ये दोजख में जाने का रास्ता है उन लोगों के लिए। और आप लोग जो यहाँ आई है तो आप लोगों को ये जन्नत के रास्ते में लगाया गया है। अब अगर आप लोग इस रास्ते से भटक जाएंगे और उन लोगों से मुतासिर होकर, उन लड़कियों से मुतासिर होकर आप सोचेंगे कि नहीं हमको भी इसी तरह करना चाहिए, घर जाकर हम भी दुपट्टा उतार के फेंक देंगे, हम भी उसी तरह से रहेंगे, फैशन का लिबास पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, मेकअप करेंगे और लड़कों के साथ घूमेंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि आपको तो जन्नत के रास्ते पर लगाया गया था, लेकिन आप जन्नत के रास्ते को छोड़कर दोजख के रास्ते में जाना चाहती हैं। क्या ऐसा करना चाहती हैं आप लोग? नहीं करना चाहती है ना। कहां जाना चाहती हैं आप लोग? जन्नत के रास्ते में। तो इसके लिए जरूरी है कि हम यहां भी दीनदार बनकर रहें और अपने घर में भी जाकर ये कोशिश करें कि दूसरे लोग भी हमसे मुतासिर हो, हम दूसरे से मुतासिर ना हो, यानी हम दूसरों का देखकर उनकी नकल ना करें, बल्कि हमारी नकल करने वाली हमारी बहन बन जाए, कि कोई हमको देखकर हिजाब लगाने लगे, कोई हमको देखकर बुर्का पहनने लगे, कोई हमको देखकर पर्दा करने लगे। ये होनी चाहिए बात हमारे अंदर। समझ में आई बात? इंशाअल्लाह एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अभी अपने ईमान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि पूरे मुल्क में मुसलमान बच्चियों को टारगेट करके हिंदू बनाया जा रहा है ना। हिंदुओं में एक पूरी टीम है, जमात है, उन लोगों का संगठन है, उन लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि जाओ और मुसलमान लड़कियों पर डोरे डालो, उनको फोन करो, उनको कॉल करो, स्कूल कॉलेज में जाकर उनको जो है अपने प्यार के जाल में फंसाओ और फिर उनको शादी करके हिंदू बना दो, तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? ये साजिश चल रही है। तो ऐसे वक्त में अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। किसी एडवोकेट ने, जो मुसलमान वकील था, उसने एक वाकया लिखा अपना कि एक लड़की थी जिसका नाम शबीना था। क्या नाम था? शबीना एक लड़की। वो कोर्ट में गई उस वकील साहब के पास, वकील हमारा मुसलमान था ना, उस वकील के पास वो शबीना नाम की लड़की गई एक लड़के को लेकर के हमारी शादी करवा दीजिए, आप कोर्ट मैरिज करा दीजिए। क्या करा दीजिए? कोर्ट मैरिज हम लोगों का करा दीजिए आप। तो वकील साहब कहने लगे कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बताया कि मेरा नाम शबीना है। लड़का से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम राकेश है। क्या नाम है? राकेश है। तो पता चल गया लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है। तो वकील ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वकील मुसलमान था। तो वकील ने कहा अच्छा रुकिए, मुझे सोचने दीजिए क्या होता है। तो इस दरमियान में लड़के ने भी, लड़की ने भी कहा कि हुजूर वकील साहब हमारी मदद कर दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, करा दीजिए हम लोगों का कोर्ट मैरिज। तो वकील ने कहा ठीक है रुकिए तो आप कम से कम। तो लड़के को लगा कि हाँ अब हमारा काम बन जाएगा। तो लड़के ने कहा कि वकील साहब आप रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, है ना, होता है ना कि मैं आपके लिए समोसा वगैरह लेके आता हूँ। तो वो समोसा लेने चला गया। इस बीच में वकील साहब को लड़की से बात करने का मौका मिल गया। तो वकील साहब ने कहा कि तुम मुसलमान हो, ये हिंदू है, तुमने इस पर एतमाद कैसे किया? कैसे तुम एक गैर मजहब के एक हिंदू लड़के से शादी करने जा रही हो? तो लड़की ने कहा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये हमको ऐसा ऐसा वादा किया है, इस तरह से रखेगा, बहुत प्यार करेगा, जिंदगी भर खुश रखेगा। इसी तरह का तो करता है ना लड़का लोग, इसी तरह धोखा देता है।
تو वकील साहब ने कहा अच्छा तुम इसके घर को जानती हो? लड़की से पूछा वकील साहब ने कि तुम इसके घर को जानती हो? कहा नहीं, इसका घर हम नहीं जानती। कि इसके भाई बहन को जानती हो कि नहीं? कि इसके गार्जियन को जानती हो कि नहीं? इसका घर कहाँ है जानती हो कि नहीं? सिर्फ लड़के को जानती हो, लड़का बहुत अच्छा है। वकील साहब ने कहा ये क्या बात हुई, सिर्फ लड़के को जानती हो और तुम जो उसको शादी करने चली गई हो, तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो, है ना, क्योंकि ऐसे तो मानने वाली नहीं थी वो, कि तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं उसके घर का पता करके तुम्हें बताता हूं, है ना। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि 2 दिन के बाद हमारा काम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद हम लोग आ जाएंगे, है ना। वकील साहब ने कहा कि 2 दिन के बाद तुम लोग आना, मैं तुम दोनों का क्या करा दूंगा, कोर्ट मैरिज करा दूंगा। इस दरमियान में लड़के के घर का पता लगा लूंगा। तो फिर लड़का आया समोसा लेके, तो लड़के से कहा वकील साहब ने कि भाई अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अभी तुम्हारा जो है कोर्ट मैरिज नहीं हो सकता है, 2 दिन के बाद आना। लड़की ने भी कहा कि हाँ वकील साहब हमें जो है अपना आधार कार्ड लाना भूल गई हूँ। उसको भी 2 दिन टालना था, है ना, कि लड़के के घर का पता चल जाए। उन दोनों को तो बहाना करके भेज दिया वकील साहब। अब वकील साहब ने लड़के के घर का पता लगाया, गांव का पता लगाया, तो आधार कार्ड दे दिया था ना, गांव का पता लगाया। वकील साहब उसके गांव गए, गांव में जाकर पता लगा कि ये जो राकेश नाम का लड़का है ये पहले से शादीशुदा है, 2 साल पहले से शादीशुदा है, शादी किया हुआ है ये पहले से, और इसकी एक 8 महीने की लड़की भी है, बच्ची भी है, शादीशुदा भी है और बेटी भी है उसकी। और यही नहीं, शराबी भी है, वो शराब पीता है। और यही नहीं, उस पर 2 केस है। उस लड़के के साथ एक भोली भाली मुसलमान लड़की क्या करना चाह रही है, शादी करना चाह रही है। वकील साहब ने उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को बता दिया, लड़के की बीवी को बता दिया कि तुम्हारा शौहर किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा है, फला दिन कोर्ट के अंदर आ जाना। अब जिस दिन उन दोनों को बुलाया था, लड़के के घर वाले भी आ गए और लड़की के घर वाले भी आ गए, तब जाके भांडा फूट गया दोनों का, और फिर उनकी शादी रुक गई, है ना। लड़की को भी एहसास हो गया कि ये कितना कमीना निकला है लड़का, हमको कितना बड़ा धोखा देना चाह रहा था ये, है ना। तो ये पूरी साजिश चल रही है। आज के टाइम में मेरी प्यारी बहनों, हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज क्या है, हमारा ईमान। क्या है सबसे ज्यादा अजीज, हमारा ईमान। सब कुछ लुट जाए और हम बिल्कुल कंगाल हो जाएं, लेकिन हमारा ईमान बाकी रहना चाहिए। क्या बाकी रहना चाहिए, ईमान बाकी रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे हर जगह की जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें गुर्बत सताए, तुम्हारे पास कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा जो है तुम्हारे सामने चैलेंज आ जाए, लेकिन अपने ईमान को कभी गंवाना नहीं है, ठीक है। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत हमारे पास क्या है, ईमान है। तो ईमान की हिफाजत करोगी ना। कैसे होगी ईमान की हिफाजत, जब हम ईमान को समझेंगे, ईमान को पढ़ेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, इस मदरसे में पढ़कर जाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर मेहनत से, शौक से, लगन से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें दूसरी औरतों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमें हिदायत का जरिया बनाए, तालीम और ताल्लुम का जरिया बनाए, इस्लाह मुआशरा का जरिया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा, हमें कबूल फरमा, जन्नत नसीब फरमा, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। मौलाना हाशिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया की जिंदगी में बरकत नसीब फरमा, उनको बहुत ज्यादा हिम्मत नसीब फरमा। मदरसे के तमाम मसाइल के हल होने की सबील मुहैया फरमा। अल्लाह इस मदरसे को जमीन नसीब हो जाए, इसके लिए इन्हें रास्ते और तरीके नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।